हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आप जहाँ से भी मुझे इस टाइम देख रहे हैं, आज मैं वापस आई हूँ अपने बिजनेस पेज पे फॉर टू रीजंस। नंबर वन, आई वांटेड टू विश एवरी सिंगल मॉम आउट देयर अ वेरी वेरी हैप्पी बिलेटेड मदर्स डे। आई एम श्योर आप सब ने अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने किड्स के साथ एक बहुत ही अमेजिंग मदर्स डे सेलिब्रेट किया होगा। और जैसे मैंने अपने कल के पोस्ट में भी कहा, each and every mom deserves to be celebrated, deserves to know and hear that she is awesome, and she needs to hear this not on just one special day of the year but every single day throughout the year. And मैंने जैसे कहा राइट, दो रीजंस हैं। तो सेकंड रीज़न है जो आप ऊपर देख रहे हैं, जो मैंने मेंशन किया है राइट, कि टर्न्स आउट कि ये एक ईजी वे आउट है। कौन सा ईजी वे आउट? I am talking about the habit of finding excuses, making excuses. इसकी बात कर रही हूँ मैं। टर्न्स आउट कि हम सबके लिए दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स टू डू। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। मैं एक्चुअली अपने लोकल प्लाजा में आई हुई हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं बाहर हूँ एट दिस पॉइंट, एंड ऑफ कोर्स लोग भी बाहर हैं, तो बैकग्राउंड नॉइज इज़ देयर। बट या, जैसे मैं कह रही थी कि वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स जो हमारी लाइफ में हम लोग एक हैबिट बना लेते हैं, वो होता है कि हाउ टू कम अप विद एक्सक्यूजेस, हाउ टू कम अप विद रीजंस वाई वी कैन नॉट डू समथिंग। आज मैंने इस पे इसलिए बात करने के बारे में सोचा क्योंकि समथिंग वेरी स्वीट हैपेंड। सी, आई एम अ पर्सन हु लव्स टू रीड, और मुझे कहना चाहिए कि आई एम अ पर्सन हु यूज टू लव टू रीड। आई स्टिल लव रीडिंग, बट मैंने फॉर द पास्ट 3-4 years ग्रेजुअली अपने आप को रीजंस देना शुरू कर दिया है कि वाई आई एम नॉट एबल टू रीड अ कंप्लीट बुक, वाई आई एम नॉट एबल टू फिनिश द बुक जो मेरे साइड टेबल पे अभी भी है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने पता है क्या रियलाइज़ किया है कि instead of getting better at the habit of going back and picking up this habit which I love of reading books, I have gotten better at coming up with reasons, with excuses कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रही हूँ। And आज ना my daughter, a lot of you have already heard her on my videos, right? So आज उसने मेरे bedside table पे बुक उठाई और पूछा कि ममा ये बुक कभी ख़त्म होगी या are we just gonna have it like a permanent fixture next to your bed? And it just made me think, somehow the way she asked me that, it just hit home, because I was like, seriously, this is the same me jo even after becoming a single parent, even after being a new immigrant, and that time my daughter was a toddler. Despite all that, I had to single-handedly manage my job. I had to commute for long hours to reach work, to come back from work. I had to make sure my daughter was in daycare early in the morning, फिर school, and उसके बाद after school daycare. ये सब timings मुझे manage करने होते थे. I had to manage home. I had to manage my young baby at that time. I had to juggle between everything else जो इसके बीच में हो रहा होता है. Yet I used to easily finish 2 to 3 books, sometimes even 3 books, and I'm not even exaggerating, despite that entire running around. So today I was actually thinking, what has changed? Now have I gotten even more busier than I was when my daughter was a young toddler? Have I started having even more things on my already overflowing plate? ऐसी क्या चीज़ है जो इतना बदल गई है that पिछले 3 to 4 years से I have really not made that kind of time which I used to make for one of the things that I love the most, which is reading books. And that is when I realized I have gotten comfortable with the habit of making excuses after excuses after excuses. So I have started making myself believe कि ऐसा नहीं है कि I don't want to finish this book. It's just that I have too many things to do. I'm too packed. I'm too busy. और that also made me realize कि this is exactly what happens not only with a small thing like a hobby or something that we love doing, but it happens and it starts मूविंग टू हमारी लाइफ के हर छोटे डिपार्टमेंट में। इसी तरह ये एक हैबिट जो हम बना लेते हैं ना अपने आप के साथ कि हम ये नहीं कर सकते हैं, लेट्स फाइंड रीजंस कि ये क्यों नहीं हो सकता है, इसे हम अपने लाइफ के हर डिपार्टमेंट में ना धीरे धीरे नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं। वी जस्ट मेक इट लुक लाइक इट्स नॉट दैट हम करना नहीं चाहते, बट ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि, एंड देन द लिस्ट स्टार्ट्स एंड कभी ख़त्म नहीं होता है। सो to everyone who's listening to this right now, or to everyone who will be listening to it at some point down the line, I just want to ask you one thing. जैसे आज
मैं एक कॉन्शियस एफर्ट ले रही हूँ टू गेट बैक टू फाइंडिंग द रीडर इन मी, टू गेट बैक टू द सेम पर्सन जो इतनी सारी चीज़ें अकेले कर रही थी, बट बावजूद उसके बहुत आसानी से और बहुत क्वालिटी टाइम के साथ अपने बुक्स को भी एंजॉय कर पा रही थी, एंड शी वॉज डूइंग इट वाइल जगलिंग एवरीथिंग एल्स। तो आज मैं एक कॉन्शियस डिसीजन लेने की कोशिश कर रही हूँ कि आई विल स्टॉप मेकिंग दोज एक्सक्यूजेस, स्टॉप गिविंग माई सेल्फ दोज रीजन्स कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रही हूँ, एंड स्टार्ट मेकिंग इट हैपन द वे आई यूज टू डू इट, बिकॉज इट इज़ द सेम मी। कुछ नहीं बदला है तो बस ये कि मैंने वो करना छोड़ दिया है क्योंकि उसे ना करने के मैंने रीजन्स बनाने स्टार्ट कर दिए। सेम वे आज मैं आपसे इस लाइफ को ख़त्म करने से पहले 2 चीज़ें जानना चाहती हूँ। एक, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने भी इसी तरह जस्ट द वे आई हैव स्टॉप डूइंग, आपने भी अपने आप को इसीलिए, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड फाइंडिंग दोज एक्सक्यूजेज, स्टार्टेड गेटिंग बेटर एट फाइंडिंग दोज रीजन्स व्हाई नॉट टू डू इट, यू हैव स्टार्टेड लेटिंग गो ऑफ इट। कुछ भी हो सकता है वो, आप टेक 2 minutes and just think about it. Is it a hobby? Is it something that you loved pursuing? Is it something from your personal life? Is it something from your work related things? सोचिए और ज़रूर बताइएगा मुझे इन द कमेंट्स। एंड व्हाट इज़ इट दैट यू आर प्रॉमिसिंग योरसेल्फ टू, जस्ट लाइक मी, स्टार्ट एज अ स्मॉल अटेम्प्ट, एज अ ट्रायल, कि कोशिश करेंगे हम मिलके टू स्टॉप मेकिंग दोज एक्सक्यूजेज एंड स्टार्ट नाउ फाइंडिंग रीजन्स टू डू इट। ओके। एंड दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, स्पेशली द मॉम्स, आप में से कितने ऐसे हैं जो इसको सुनने के बाद ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि वन ऑफ द थिंग्स जिस पे आप रीजंस दे रहे हैं दैट यू कैन नॉट डू इट बिकॉज या आप एक्सक्यूजेस बनाते जा रहे हैं, इज़ दिस डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग योर डिजिटल बिजनेस। अगर ये वन ऑफ द थिंग्स है जो आप पोस्टपोन किए जा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट किए जा रहे हैं, या फिर बस अपने आप को डे ऑन डे कन्विंस किए जा रहे हैं कि आप करना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, वांट टू टेक योर नेक्स्ट स्टेप, वांट टू बिकम दैट डिजिटल बिजनेस ओनर योरसेल्फ, बट रीजंस बहुत सारे हैं, एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू इट। अगर आपको स्ट्राइक हुआ है और ये फीलिंग आई है कि दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो आप have gotten better at making excuses for not doing, then I think ये एक sign है that it's high time that you and I connect, we have that conversation, and आप sideline से इस तरह मुझे और मेरी तरह बाकी digital business owners को अपनी अपनी success stories ही ना लिखते हुए देखते रहें, but अपनी खुद की success story भी लिखने का time आ चुका है। And जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, you are not alone in this journey. I am right here and I will be right here with you every step of the way in this journey, but ये जर्नी तभी स्टार्ट हो सकती है जब, जैसे मैंने कहा राइट, जैसे मैं एक्सक्यूजेस बना रही हूँ उसी तरह जब आप भी अपने एक्सक्यूजेस बनाने शुरू करेंगे, एंड इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग रीजंस ऑफ व्हाई यू कैन नॉट डू इट, यू स्टार्ट फाइंडिंग रीजंस ऑफ व्हाई यू कैन, एंड यू वेरी वेल कैन डू इट। चलिए, आज के इस लाइव में आई विल लीव यू विद दैट थॉट। इट वॉज वेरी वेरी नेसेसरी कि मैं आऊँ और आपसे बात करूँ इन 2 चीज़ों के बारे में। सो आई विल लेट ऑल ऑफ यू ब्यूटिफुल पीपल गो फॉर नाउ, और बहुत जल्दी आई विल बी बैक ऑन माई पेज टू कैच अप विद ऑल ऑफ यू वेरी वेरी सून। एन्जॉय योर मंडे इवनिंग एवरीवन, एंड बाय फॉर नाउ।